जब माननीय मोदी जी 2009 में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि भारत की बदलती हुई जो ज़रूरियात है उसके लिए एक नए वर्ल्ड क्लास शहर का निर्माण होना चाहिए, जो नई पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सके। इसके लिए उन्होंने उस टाइम पे जो सपना देखा, उसके लिए एक नया एक्ट पास किया गया जिसको हम SIR एक्ट 2009 कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो कानूनी ढांचा तैयार किया गया, उसके तहत धुलेरा शहर की प्लानिंग शुरू हुई 2009 से। तरह तरह के इसमें स्टडीज़ करवाई गई, इसकी प्लानिंग करवाई गई और अब हम उसको अमली जामा पहनाने में सफल हो रहे हैं। आज की तारीख में धुलेरा में करीब 3000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और ये शहर अब एक स्वरूप ले रहा है। धुलेरा शहर की जो परिकल्पना है उसको दुनिया के श्रेष्ठ शहरों के सामने बेंचमार्क किया गया है और इसमें विश्व के श्रेष्ठ शहरों में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सबको धुलेरा में उसके जो प्लानिंग स्टेज पे उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। Dholera township has been developed as a major industrial hub not only for the Gujarat but for the entire country. We in Gujarat, we in India are inviting people from all over the country, industrialists, businessmen and even common people to come and live there, develop your industry and yes, share the prosperity with Gujarat and with India. And Gujarat within India is the fastest growing state. There is a lot of requirement of land and we are happy to announce that Dholera is almost ready. It is one city which has got platinum ranking based on its infrastructure and sustainability. Right now there are only two cities who have got this ranking. One is Washington and second is our Dholera. Dholera will show the way to whole of India and probably the South Asia that how we can develop in a smart way. We can have smart manufacturing, we can have smart urbanization, we can have smart governance and we can develop smart citizens. Dholera is going to be very unique in so many aspects. It is going to be a very humane city where we are creating by design aspects in the city so that it is more egalitarian. That initially we had a total area of 920 square kilometer which can be developed, out of which about 600 square kilometer of area is developable area. It was decided to work on this area to develop as an industrial hub and the latest industrial hub with latest state-of-the-art infrastructure. Under the auspices of DMIC and the DIPP, the project took shape. It was decided and the central government and the state government were both proactive to this project. It was decided that 422 square kilometers of the area can be developed under the town planning scheme and accordingly the town planning schemes were designed and it was decided that in 3 phases the entire work. First of all, the way we approached Dholera, we did an international benchmarking. And why did we do international benchmarking? Everybody asked us, what does that mean? What does it give us? We are calling Dholera the world's first platinum rated city at the best world-class standards. Now, you have to define what every term means. Otherwise, how do you convince your audience? So platinum is easily defined because the Indian Green Building Council has awarded us a platinum certificate after they have reviewed our design. So we have gone through that process and we are completely certified as a platinum. So it's not a self-serving statement. But when it comes to world class, how do you say I'm world class? I have to prove it. So what we did is we did international benchmarking for every single utility. A utility is water, wastewater, storm drain, traffic, design of road systems, ICT, power systems. So these are all individual utility items. We did an international benchmarking and after the international benchmarking we took the best performing utilities and then designed Dholera to beat that standard. टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ के जो लैंड ओनर है उनके पास की 50% लैंड हम धोलेरा SR के नाम होती है और 50% लैंड सभी जो स्टेक होल्डर है यानी कि जो लैंड ओनर है उसके पास रहती है।
तो उसमें सभी का फायदा होता है। लैंड ओनर अपनी जो बची हुई जमीन है उसमें किसी इंडस्ट्रीज को भी वो बेच सकता है, या अपने आप कुछ इंडस्ट्रीज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और धोलेरा में जो भी इंडस्ट्रीज आती है उसमें वहाँ के जो विलेजर्स से उनको रोजगार प्राप्त होता है, उनकी जो जीवन शैली है उनमें भी बहुत सारा बदलाव आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो डेवलपमेंट का जो फंडा है, हमारा जो डेवलपमेंट की जो व्याख्या है वो पूरे की पूरी यहाँ पे फुलफिल होती है, सेट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट यानी कि एरिया का डेवलपमेंट, सिटी का डेवलपमेंट और राज्य का डेवलपमेंट एज वेल एज सभी वहाँ के लोगों का भी डेवलपमेंट होता है, और ये सही मात्रा में धोलेरा में हो रहा है। इसमें हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। धोलेरा एक भारत में श्रेष्ठ रहने जगह वाली जगह स्थापित होने जा रही है। तो इसमें इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए सभी सुविधाएं पहले से तैयार की गई हैं। पहले ऐसा होता था कि इंडस्ट्रीज़ किसी को उद्योग लगाना हो तो वो अपनी ज़मीन खरीदते थे, फिर फैसिलिटीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते थे, और इस तरह से काफ़ी समय व्यतीत हो जाता था। इस धोलेरा में सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ पहले से इंस्टॉल करके अब हम मार्केटिंग फेज़ में हैं। सोलर सेक्टर में हम 5000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क धोलेरा में डेवलप करने जा रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात में एयरबस ने हमारे साथ MOU किया था, तो जब भी उनको ऑर्डर मिलेगा वो अपना प्लांट धोलेरा में स्थापित करेंगे। कुछ और कंपनियों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। डिफेंस, एरोस्पेस, EV व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी प्लांट और जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग, इन सब एरियाज़ को फोकस करके हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो कंपनियां आएँ और वहाँ पे अपना इस्टेब्लिशमेंट स्थापित करें। गौरव जी, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज़ पहले से तैयार हैं, वो आके अपना फैक्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से उन्हें परमिशंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। ज़्यादातर परमिशंस ये जो धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी लिमिटेड हमारी कंपनी है, जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ से सीधे उनको मिल जाएंगी।